Once again, I am back with my weekly Nifty and Bank Nifty analysis video. So last week I could not post any video because I was busy with some personal engagements. But again here I'm back with a new video. Most of the people think that traders they have fun on weekends. But the thing is, you have to work on Sundays, you have to prepare for the coming week. So anybody, you would not see anybody succeed greatly in this market if he is not putting an effort on the weekend. So let us start with our usual Nifty analysis, and as usual you can see we are having a look at the Nifty weekly chart. And if you remember, last week when we had created video, we had talked about the levels of 17,600, which was this level. And you can clearly see that we had also discussed that when 17,600 is broken, then maybe we could have a test of 16,800, and even that was done, right? So far so good. Our analysis proved nearly right? And then we had drawn this trend line also, and we can clearly see that this trend line acted as a great resistance. So now coming back, that what lies ahead again. So again, I am not forecasting what lies ahead. We are just speculating the possibilities, or rather say the probabilities what could happen. So if you see last week's candle, we opened and closed exactly at the same point. I'll just zoom in it a bit so that all of you can see it very, very clearly. So we opened and closed at exactly the same point, and the high which we had last week, it was around 17,400, and the low that we had, it was around 16,800 something, 16,800 something. And the candle that you see on weekly, it is called as doji means indecision, right? So doji, it also means that the trend can actually continue or it may reverse, right? So, and we are talking about, before we think otherwise, we are talking about this intermediate downtrend that we are having right now, right? So now we have a doji, so a clear tight fight between the bulls and the bear, no decision as such as of now. The base of the doji lying at 16,800. So now whenever you see this type of candle, make sure that you go into the market without any kind of bias. Don't have any bias, long or short. Maybe on the intermediate, on the shorter term time frame, you can have some bias, but ऐसे बायस लेके मार्केट में मत जाइए, राइट? सो नाउ अब ये डोजी है, राइट? सो क्लियर इनडिसीजन है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट वीक, हम लोग देखते हैं. वी कैन प्लान अ बिट, राइट? सो एंड अगर आप लोग देखेंगे तो SGX Nifty was fairly down last week, and it closed around 17,000, 17,000 के आसपास वो क्लोज हुआ था, राइट? लेकिन कल वो कहाँ खुलेगा, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वी हैव रिजल्ट्स फ्रॉम ICICI banks and some other big index leaders. So we also have to look onto that, right? So coming back to our Nifty, now we come back to Nifty on the daily chart, and on daily chart हम लोग देखते हैं that there is some kind of a selling pressure, जो हमने फ्राइडे को clearly देखा था. We had seen some selling pressure, right? So very, very clearly now you can clearly see the ranges which have been marked here. Clearly ऊपर में 17,400 है, नीचे में 17,600 है, right? Okay, and if you notice, I have put an additional line here which is somewhere around 16,400, 16,400 के पास एक लाइन बना रखी है हमने,
राइट. सो नाउ व्हाट इज द रीज़न. अभी एक्चुअली होता क्या है कि जब भी डोजी अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक होता है तो वो उस साइड में एक मोमेंटम दिखाता है. सो this is what I am actually expecting, that if this doji breaks on the upside तो ये हमें यहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है somewhere around 17,600, and similarly on the downside we may have a movement till 16,400. लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, that and we have already discussed it in past video also, that 16,800 is a very critical video. हाँ, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग उसके नीचे नहीं जा सकते. वी मे हैव अ टेम्पररी स्लाइड बिलो दैट, लेकिन फिर उसके बाद व्हाट मैटर्स इज वेदर वी आर एबल टू मूव अबव दैट और नॉट. एज पर माई एक्सपीरियंस और जो मेरा अभी तक सोचना है, 16,000 अगर हमें ऊपर जाना है, इफ यू हैव टू मेक अ बिग रन ऑन द अपसाइड, then 16,800 should prove as the base of that bigger move which might happen. So 16,800 बहुत critical level है, and what I want is, or rather say what my thought process is, it won't be good if we have a weekly closing below 16,800. Now what is this weekly closing? मतलब अगर फ्राइडे को 16,800 के नीचे हुआ तो फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है. टिल द टाइम ये फ्राइडे तक 16,800 के ऊपर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट माइट हैपन कि ये टेम्पररी एक डाउन स्विंग यहाँ से नीचे की तरफ आपको दे दे, चलेगा. इट माइट ऑल्सो बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. इस लाइन को अगर थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग करें तो ये कुछ 16,400 के आसपास आता है. एंड इफ़ यू सी तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ गैप्स भी दिखते हैं विच कुड बी द प्रोबेबल पॉइंट, जिसको बिकॉज अगेन यू नो दिस थिंग राइट, दैट गैप छोड़ के हम लोग ऊपर नहीं बढ़ सकते. अगर एक सॉलिड बिल्डिंग, सॉलिड फाउंडेशन बनाना है तो हमें गैप्स को भरना पड़ेगा. सो these gaps, what I would ideally want is these gaps should be filled. So ये डेली में भी हमें दिख रहा है कि हो सकता है एक इंटरमीडिएट हमें छोटा सा करेक्शन मिलेगा. लेकिन ओवरऑल अगर आप निफ्टी को समझने की कोशिश करें तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा है. आपको बोथ वेज आपको गैप अप गैप डाउन हो करके प्रीमियम ईट करेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक साइडवेज आएगा और रेंज विल बी कंप्रेस्ड फिर कंप्लीटली, राइट. सो क्योंकि एक किसी भी डायरेक्शनल मूव आने से पहले रेंज कंप्रेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो नाउ अब हम लोग कल के लिए देखते हैं. तो कल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कुछ इधर यहाँ पर, विच इज़ अराउंड एग्जैक्टली 17,000 का लेवल. आप अगर देखें ध्यान से तो यू विल सी दैट 17,000 के लेवल पे हमें पहले भी अच्छी बाइंग मिली है, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 17,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है. एंड इसके नीचे सपोज अगर कल हम लोग इसके, जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रही है, अगर हम लोग इसके नीचे खुलते हैं एंड थोड़ा फॉलो थ्रू मिलने लगता है तो माइट बी वी कैन हैव अ राउंड ऑफ सेलिंग टिल 16,800. वहाँ पे कैसे बिहेव करता है वो हम लोग उस समय देखेंगे, राइट. सो ये हमें ध्यान में रखना है आगे जा करके. और फिर अब हम लोग डेली देख लिए तो, और अब आवरली में आते हैं. तो आवरली में अगर आप देखें तो हमें क्लियर सा एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है. वी कैन क्लियरली सी, अगर आप डाउ थ्योरी समझते हैं तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना. सो माइट बी कि वी कैन हैव अनदर लोअर लो ऑन द डाउन साइड, राइट. सो देखते हैं. एंड आप देखिए यहाँ पर फिर से हमें वही सारे लेवल्स नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट एक और एडिशनल लेवल हमें आवरली के बेस पे दिख रहा है, एंड विच इज़ अराउंड 16,600, विच कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द
वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, समवेयर अराउंड 16,600। एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे मत जाइए, बट हाँ ये हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर निफ्टी, राइट। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सोच रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन सेम अप्रोच यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। हम लोग वीकली में सबसे पहले हम लोग वीकली ही देखते हैं, जिससे एटलीस्ट समझ में आता है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द हायर टाइम फ्रेम। और एक और चीज़ समझ लीजिए कि लोअर टाइम फ्रेम में जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ हायर टाइम फ्रेम का रिफ्लेक्शन होता है, राइट। सो अगर आपको याद होगा, लास्ट डे वी हैड लुक्ड एट निफ्टी एंड वी हैड सीन दिस डोजी, एंड हमने वहाँ पर ये लेवल भी मार्क किया था दैट बिलो दिस 37,300 लेवल हमें एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड वी गॉट अ गुड डाउन साइड। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा सपोर्ट किधर मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ट्रिकी हो सकता है कल, बिकॉज ICICI बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। बट आइडियली हम लोग एक बार ICICI बैंक का चार्ट भी देख लेते हैं, सिंस रिजल्ट अच्छे आए हैं। सो ICICI बैंक का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आप अगर देखो तो हमें लास्ट वीक एक रिजेक्शन टाइप का कैंडल मिला है। देयर हैज़ बीन अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ ICICI बैंक फ्रॉम द अपसाइड, एंड जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज 779 और लेट अस से 7,777। सो अगर ICICI बैंक इफ इट स्टार्ट्स टू मूव अबव 777 तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, विच कैन फर्दर एक्सटेंड टू योर बैंक निफ्टी, क्योंकि ICICI बैंक बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, राइट। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ा सा रेड कैंडल लास्ट वीक हमें देखने को मिला है, एंड वी फेल फ्रॉम अराउंड 37,000 टू अराउंड 36,000। एक 1,000 पॉइंट्स का डाउन मूव हमें 1 वीक में मिला है। सो नाउ अब हमको यहाँ पे देखना है कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल नेक्स्ट पॉइंट। तो क्लियरली ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, विच इज़ 35,300। जहाँ पे आपको एक अच्छा सा ये पॉइंट है जहाँ आपको अच्छी बाइंग देखने को मिली है पहले भी। सो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट यहाँ पर आने से, इस लेवल पे आने से वी कैन हैव सम मोर बाइंग, राइट। तो फिर हम लोग देखते हैं, अब डेली में जाते हैं, डेली में देखते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और डेली में हम लोग अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके इसने डाउनवर्ड मूव दिया है। सिर्फ यही नहीं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वी हैव ब्रोकन ऑन द डाउन साइड बिलो दिस। सो नाउ just picture this thing that anybody who would have bought in this zone, he is now completely trapped. So now maybe he can try and make an exit, right? So which can bring a down move all the way till 35,000. अब 35,000 आने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। Now again we go to आवरली कैंडल, एंड आवरली में भी हम लोग देखेंगे कि कुछ सिमिलर सा निफ्टी टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, वेयर वी हैव क्रिएटेड अ लोअर लो, देन वी हैव क्रिएटेड अ लोअर हाई, एंड देन वी माइट जस्ट गो ऑन टू क्रिएट अनदर लोअर लो। अब ये लोअर लो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा ये हमें देखना है। वी ऑल्सो फाइंड hourly candle देख करके we also find another level which comes somewhere around this. Now understand this is as per the hourly candle. So ये level एक बार इंट्राडे में काम कर सकता है। 35,600 से लेके 500 के बीच में एक छोटा मोटा सा सपोर्ट आ सकता है, हमें ध्यान रखना होगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए आपके शॉर्ट्स, इफ़ नॉट बुक वहाँ पे आपको ट्रेल कर लेना चाहिए। सो आइडियली आने वाले वीक के लिए एटलीस्ट सिंस SGX ने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का एक मूव दे दिया है, तो मे बी अब जो बेटर पार्ट ऑफ जजमेंट होगा इट विल हैपन ओनली आफ्टर दैट मूव विच हैज़ हैपेंड ऑन
Monday. So guys, stick to the levels which I have already told here. इसके एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स. एंड देखिए आवरली में देखने से आपको क्लियर पॉइंट नज़र आता है दैट 35,000 इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा इस लेवल पे कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आप अगर देखो तो पिछली बार यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी और एक अराउंड 4,000 पॉइंट का राइज हमें मिला था. वी हैड अ रैली ऑफ 4,000. सो वी कैन मे बी एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड वंस वी कम हियर, राइट. तो इसको ध्यान रखिएगा. निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारी बातें चल रही हैं इंटरनेट पे दैट निफ्टी विल गो दिस देयर वेयर. आइडियली मैं नियर टर्म में आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ डाउनसाइड. एक इंटरमीडिएट छोटा सा 500-700 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निफ्टी में. इनफैक्ट इफ दैट काइंड ऑफ करेक्शन कम्स, वो निफ्टी के लिए अच्छा ही होगा बिकॉज इट माइट लूज ऑन सम वेट. एंड जो साइड में जो इन्वेस्टर्स खड़े हैं हु आर वेटिंग विथ रेडी मनी, दे कैन जंप ऑन द शिप. जो पिछली रैली मिस कर चुके थे, दे कैन कम ऑन. सो ओवरऑल आउटलुक जो है लॉन्गर टर्म में बहुत नेगेटिव नहीं है, राइट. सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई वीडियोज़, राइट. एंड do subscribe to our channel and do follow our channel, and I'll try to put on more videos in coming few days. Thank you guys. Have a great day and have a very very profitable week ahead.